Hey guys, this is your coach Siddharth. In this video, I'm going to share some of the diet myths which I have experienced from my own personal journey as well as training people for many years. I'm going to share some of the diet myths or some of the mistakes that people do when they are starting their diet or when they are following a healthy lifestyle or a fit lifestyle. So why do we need to basically diet? Is obviously either to lose weight or gain muscle, right? So most of the people have a very common misconception about what we need to eat and what we don't need to eat. That also makes the first problem for the people. The number one myth that people have is healthy versus unhealthy. So most of the people think if something is healthy, they can eat a lot of it, and if something is unhealthy, they cannot even touch it. And that is the biggest mistake, because when you are doing some kind of a diet, let's say you are eating peanuts or you are eating snacks, which you can consider as healthy, but eating more of it can increase a lot of calories, and people don't realize it. I have experienced so many clients who were eating healthy stuff but also gaining weight. So प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हेल्दी खा रहे हो या नॉन हेल्दी खा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि यू आर ईटिंग मोर कैलोरीज. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन हेल्दी एंड अनहेल्दी, you should focus more on calories, how to track calories, how much calories do you need. उससे ज़्यादा आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी. Because if your goal is to lose weight, you need to eat in a deficit. If your goal is to build muscle, you need to eat around maintenance or surplus. अब जब आपको पता है कि मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट जितनी है, तब आप देखो कि उसमें आप कैसे हेल्दी और अनहेल्दी फूड को चूज कर सकते हो. एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. जैसे मोस्ट पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए. सो मैं उनको हमेशा पूछता हूँ कि इफ आई गिव देम एन एग्जांपल, लेट्स से एप्पल वर्सेस ऑरेंज, व्हिच इज मोर हेल्दियर. सम पीपल से एप्पल, सम पीपल से ऑरेंजेस, राइट? सो कभी भी कोई फूड गुड और बैड नहीं होता. एप्पल हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑरेंजेस हैव अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उससे क्या होता है कि आपको समझ आता है कि एवरी फूड हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज. तो कभी भी किसी भी फूड को कैटेगराइज मत करो और बोलो कि दिस इज गुड और दिस इज बैड, because when you do that, you build a relationship with the food and you can eat more of good food and still gain weight. So the goal is कि आप focus करो calorie requirements पे rather than focusing on healthy or unhealthy, good or bad. Second myth is a certain macronutrient जैसे carbs या fat can make you fat. Carbs can make you fat. Fat can make you fat. You should not eat oil, you should not eat butter, you should not eat ghee. ये बहुत ही बड़ा misconception है among all the people around the world, because people think you cannot eat white rice, people think you cannot eat potatoes, people think you cannot eat ghee, butter, oil. And when I give my clients butter, ghee and oil, they are like, Siddharth, we are trying to lose weight, why are you giving us ghee and butter? The thing is, if you are eating under your calories, right? अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर आप खा रहे हो, तो आप घी बटर भी खा सकते हो, आप कार्ब्स भी खा सकते हो. और टाइमिंग ऑल्सो डजेंट मैटर. सम पीपल कम टू मी एंड दे लाइक, सिद्धार्थ, रात को शायद कार्ब्स नहीं खाना या रात को राइस नहीं खा सकते. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ द मेन गोल इज कि आप अगर अपनी कैलोरीज के अंदर खा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. एंड ऑल्सो यू कैन ईट कार्ब्स, फैट्स and protein. Fats are actually essential macronutrients. आपकी बॉडी के cognitive function के लिए, आपके joints के लिए you need fat. So बहुत सारे लोग क्या करते हैं, zero carb, zero fat डाइट पे चले जाते हैं, which is unsustainable or non-sustainable. तो you should not follow that. Third, detox diet. तीसरी चीज़ ये है कि when people start, they often look to other influencers or other people who are giving these detox diet for 10-15 days, जहाँ पे they are telling or guiding people कि आप अपने बॉडी के सारे टॉक्सिन्स, जो आपका बॉडी में फैट है, they are telling it as a toxin, आप उसको कम कर सकते हो. which is fraud, which is wrong, which is like misinformation. क्योंकि आपकी बॉडी में अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, चाहे वो आर्म्स पे है, चाहे वो चेस्ट पे है, चाहे वो बेली फैट पे है, बेली पे है, तो वो आपको कम करना पड़ेगा while going on a calorie
डेफिसिट, आपको थोड़ा सा टाइम डेफिसिट पे देना पड़ेगा ताकि आप वेट लूज कर सको। तो आपको डिटॉक्स करके कोई बॉडी में हेल्प नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली आप 10-15 दिन के लिए अगर आप खाना पीना सब छोड़ के और सूप्स वगैरह पियोगे तो ऑब्वियसली आपका 2-4-5 kg कम हो जाएगा, बट दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट, क्योंकि उसमें आपका मसल मास लूज हो जाएगा, आपका फैट लूज हो जाएगा, मसल भी लूज हो जाएगा, तो यू कैन नॉट सस्टेन दैट। तो आपको एक हेल्दी तरीके से, एक हेल्दी प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट डाइट जिसमें आपके प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हर चीज़ कवर हो रही है, वो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। सो ये जो डिटॉक्स डाइट्स है, इट इज़ जस्ट अ मिथ। आपको डिटॉक्स डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट होती है टू डिटॉक्स इटसेल्फ, अगर आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट या एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हो, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हो, तो आपको डिटॉक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक्सट्रीम डाइट्स आर मैजिक। एक्सट्रीम डाइट्स बेसिकली जिसमें आपको बोला जाता है आपको कार्ब्स छोड़ने हैं, आपको फैट्स छोड़ने हैं, आपको बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज डाइट फॉलो करनी है, इवन सम सप्लीमेंट्स जिसमें दे आर गिविंग यू मील रिप्लेसमेंट शेक्स, और उसमें बोला जाता है दे कैन हेल्प यू लूज वेट। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लिए होते हैं जिसमें दे आर गिविंग शेक्स इंस्टेड ऑफ डाइट, और उसमें क्या होता है कि दे लूज अ लॉट ऑफ वेट, मतलब 10-15 kg लूज कर लेते हैं, 20 kg लूज कर लेते हैं, एंड दे आर लाइक सो दैट वी लॉस्ट वेट, नाउ हाउ वी शुड बी एबल टू मैनेज इट। तो वो मैनेजेबल नहीं है। अगर आपने वेट लूज कर भी लिया तो आपका गेन हो जाएगा, बिकॉज आपने एक एक्सट्रीम तरीके से करा है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करना है तो यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम डाइट्स। कोई भी एक्सट्रीम डाइट आपको हेल्प नहीं कर सकती, चाहे आप 1 महीने के लिए कर रहे हो या 2 महीने के लिए कर रहे हो। यू शुड ऑलवेज स्टिक टू द सस्टेनेबल डाइट, बिकॉज इसका ये रीज़न होता है क्योंकि एक तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्सट्रीम डाइट के, दूसरा यू कैन नॉट मेंटेन द वेट लॉस दैट यू हैव अचीव्ड, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? नंबर 1 थिंग कि पहले अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को निकालो कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। इधर यू फाइंड ऑन ऑनलाइन कैलकुलेटर अपने BMR से, अपनी TDE से, और या फिर यू सी व्हाट यू आर ईटिंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स और उसकी डाइट हिस्ट्री में निकाल के देन कैलकुलेट एक चीज़ को लेके कि आपका क्या क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट्स रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज प्रोटीन। बहुत सारे लोगों के क्या होता है डाइट में कार्ब्स, फैट, फाइबर सब होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होता, स्पेशली वेजिटेरियंस। तो you have to maintain a 1.6 to 2.2 grams of protein per kg of your body weight, and everybody should maintain it regardless of male, female, age group 30, 40, 50, whether you are going to the gym or not, whether your goal is to build muscle or not. हर बंदे को, हर इंसान को nowadays they need protein intake every day. Third, focus more on whole foods. आपके डाइट का 80% या 90% हिस्सा जो कैलोरीज का है वो होल फूड से आना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड से आना चाहिए, कार्ब्स, हेल्दी फैट से आना चाहिए, फाइबर से आना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह से आना चाहिए। 10-20% जस्ट टू मेक द डाइट सस्टेनेबल आप अपनी फेवरेट चीज़ें डाल सकते हो, जैसे टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, डेट्स, कुछ भी जो आपको हेल्प करेगा डाइट को सस्टेन करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपने डाइट जब आप फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, बट ज़्यादातर हमें प्यास लग रही होती है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज योर हंगर, इट इज़ समटाइम्स योर थर्स्ट। आप देखो कि आपका पूरे दिन का व्हाट इज़ योर वाटर इनटेक, एंड वंस यू सी योर वाटर इनटेक इज़ लो, ट्राई टू ब्रिंग इट अप स्लोली, एंड आप देखोगे कि आपका जो हंगर है वो भी चला गया। तो ये बेसिक स्टेप्स है एंड बेसिक myths थे जो मुझे लगता था कि I need to cover which are coming. If you have any other myths or you have any other doubts, तो आप comment पे नीचे डालो and I will answer your doubts